Today we are going to start rational number of standard 8. This is first chapter of NCERT book. So we have written here chapter 1, math, standard 8, rational number. Rational number chapter is new for you, I think. You have studied about whole number, natural number, integers also you have studied, but rational number is new thing for you. Rational number is actually a number in form of p by q, where q is not equals to 0, known as rational number. जैसे आपने इंटीजर नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है, all the counting numbers are natural numbers. Counting numbers including with 0 form a group of whole numbers. Integer is actually counting numbers including with their negatives, and 0 form a group of integers. Natural number is the smallest group of numbers. Whole number is the group of numbers bigger than the group of natural numbers. Integer is the bigger group of numbers than the group of whole numbers. And rational number is bigger than the group of integers. Group of numbers, that is integer. So integer से बड़ा ग्रुप है रैशनल नंबर का. ठीक है बेटा, इसका मतलब सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं. तो ये जो हमने बताया स्मॉलेस्ट ग्रुप, नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n, डिनोटेड बाय w, होल नंबर डिनोटेड बाय w, इंटीजर डिनोटेड बाय z, एंड रैशनल नंबर डिनोटेड बाय q. All the natural numbers are whole numbers, all the whole numbers are integers, all the integers are rational numbers. So हम लोग आज रैशनल नंबर पढ़ने वाले हैं. इससे जो एक बड़ा ग्रुप होता है वह रियल नंबर का ग्रुप होता है, वो आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे. दैट इज द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स. उसमें रैशनल, जो ये रैशनल है, उसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं. रियल नंबर में इरेशनल भी इंक्लूड हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट रियल नंबर इज द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ नंबर्स. दुनिया के जितने नंबर हैं सारे उस ग्रुप में आते हैं. तो रैशनल नंबर का मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. रैशनल नंबर, नंबर इन form of p by q, where q is not equals to 0. p and q are whole numbers बोल सकते हैं. वो लिखना उतना जरूरी नहीं है जितना q is not equals to 0, known as rational number. Yes. Now I am writing some examples like 2 upon 3, like 4 upon 5, like -3 upon 7. All these are rational numbers because reason behind it is only one. Q is not equals to 0. Q is this here. P, Q. P and P upon Q का मतलब P ये है और Q ये है, और Q की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है. तो इसका मतलब ये सभी रैशनल नंबर है. अच्छा, अब अगर आपने लिख दिया 5, simply 5 is written over here, can you say this is rational or not? Yes, this is rational because we can write upon 1. 5 upon 1 can be written for 5, and it means Q is again not equals to 0. Q is equals to here 1. So ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. -3, again this is coming in the category of rational number, that is -3 upon 1 can be written. But as one more number, that is 0. Suppose anybody is asking you, is 0 a rational number? Certainly yes, it is a rational number because this can be written 0 upon 1, where p is equals to 0 and q equals to 1. Again q is not here 0. Q is not equals to 0. This is the main condition for being a number rational.
यही एक कंडीशन है जिसके ग्राउंड पे किसी भी नंबर को हम रेशनल बोल सकते हैं। अच्छा, कई बार इस तरह के नंबर आपको दे देगा, कैन यू से दिस इज रेशनल और नॉट? सर्टेनली नॉट, बिकॉज वैल्यू ऑफ q इज हियर 0, but according to the definition of rational number q must not be 0, तो q की वैल्यू 0 है, इसीलिए रेशनल नहीं है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल है क्या? नो, दिस इज नॉट इरेशनल ऑल्सो, दिस इज इन फैक्ट नॉट अ नंबर इन मैथमेटिक्स। इस तरह के नंबर को हम मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, तो दिस इज नॉट कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नंबर, कोई भी नंबर में की कैटेगरी में ये नहीं आता, इसीलिए इसको हम नंबर मानते ही नहीं है। दिस इज नॉट डिफाइंड। सिंपली अगर आपको पूछे व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, तो इस तरह से आप कर सकते। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर जो हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो पहले हम लोग नेचुरल में भी पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स में भी पढ़ चुके हैं, इंटीजर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ रेशनल में भी वही प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। वो प्रॉपर्टी क्या था? पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर दो रेशनल को ऐड करके आंसर रेशनल ही आता है तो हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर इज अंडर क्लोजर इन एडिशन, या एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज अंडर क्लोजर। यस, अगर आप 2/3 और 4/3 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6/3, जो कि होगा 2, एंड ये रेशनल है। दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, एंड सम इज आल्सो रेशनल। इट मींस वी कैन से एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज अंडर क्लोजर। ये आपको याद रखना है कि अंडर क्लोजर होता है। इनफैक्ट इंटीजर भी, एडिशन ऑफ इंटीजर इज आल्सो अंडर क्लोजर। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। यस, एडिशन ऑफ होल नंबर इज आल्सो अंडर क्लोजर, एंड एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो अंडर क्लोजर। ये सारे अंडर क्लोजर होते हैं, बिकॉज दो नेचुरल को ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है वो नेचुरल होता है, दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है होल नंबर होता है, दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो आंसर जो आता है वह इंटीजर होता है। एंड इन दिस केस व्हेन two rational numbers are added we get a rational, it means addition of rational numbers is under closure। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड इसने किया। आते सब्ट्रैक्शन के केस में, मान लीजिए हमने लिखा 3/2 माइनस 1/2, सर्टेनली ये भी हो जाएगा बेटा 2/2, दैट इज 1। तो हमने क्या देखा, दिस इज रेशनल, दिस इज रेशनल, एंड दिस इज आल्सो रेशनल, means subtraction of rational number is also under closure। लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर के केस में subtraction of natural numbers is not under closure, subtraction of whole numbers is not under closure। याद रहे क्यों नहीं है वो भी जरा मैं बता देता हूं। ऐसे तो हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। 3 - 2 आप करते हो तो 1 आता है, बट 2 - 3 आप करते हो तो -1 आता है, और 2 - 3 इज -1, विच इज नॉट नेचुरल नंबर। इनफैक्ट दिस इज नॉट होल नंबर्स। अगर हम बात करें इंटीजर की, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज अंडर क्लोजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज अंडर क्लोजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज अंडर क्लोजर, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स नॉट अंडर क्लोजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉट अंडर क्लोजर। यहां हम लोग बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, दिस इज अंडर क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इस तरह से, उसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, 2 × 3 दैट इज 6। नेचुरल नंबर अगर इसको मानते हैं तो यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अंडर क्लोजर। अगर इसको होल नंबर मानते हैं तो यस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स इज अंडर क्लोजर। अगर इसको आप इंटीजर मानते हो तो यस, इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज अंडर क्लोजर। और अगर इसको आप रैशनल मानते हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर। अगर इसमें हम लोग माइनस लगाते बेटा, -2 × -3 दैट इज -6। ठीक है,
तो यह भी, अब ये इंटीजर के केस में आ गया क्योंकि -3 इंटीजर होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं, तो क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज अंडर क्लोजर और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज अंडर क्लोजर। डिवीजन के केस में जाओगे आप तो मान लेते हैं हमने लिखा 2 divided by 3, this becomes 2 upon 3 because 2 cannot be divided by 3. In that very condition 2 upon 3। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की तो 2 divided by ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल, बट दिस इज नॉट नेचुरल, तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अंडर क्लोजर। अगर मैं बात करूं कि होल नंबर है ये दोनों तो डिवीजन ऑफ होल नंबर्स इज अगेन नॉट अंडर क्लोजर बिकॉज दिस इज नॉट होल नंबर। अगर मैं बात करूं इंटीजर की तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अंडर क्लोजर बिकॉज 2 upon 3 इज नॉट इंटीजर। 2 is integer, 3 is integer, but 2 upon 3 is not integer. But if we are talking about rational number, yes, 2 is rational, 3 is rational, 2 upon 3 is also rational. So we may say division of rational numbers is under closure। तो मतलब यह कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रैशनल नंबर के केस में सारे क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, याद रखें। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के केस में भी हम जाते हैं। उसको वन बाय वन बता रहा हूं कि किसमें होल्ड करेगा और किसमें होल्ड नहीं करेगा। ये तब होता है बेटा जब उसके ऑर्डर को मींस हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, दोनों एडेंट्स बोलते हैं, एडेंट्स ए एंड बी आर टू एडेंट्स हियर। इसके ऑर्डर को जब व्हेन यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स देयर इज नो चेंज इन द सम, लाइक a plus b equals to b plus a। तो ऐसे कंडीशन जब हो मींस ऑर्डर को चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती हो, सम चेंज नहीं होता हो, या ऑपरेशन के बाद का जो नंबर आता है, आंसर आता है, वो चेंज नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड किया। जैसे a plus b equals to b plus a, जैसे मैंने लिखा 2 plus 3 equals to 3 plus 2, वैल्यू तो 5 ही आएगी दोनों ही कंडीशन में। इसका मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसने होल्ड किया, बट अच्छा ये नेचुरल में भी होल्ड करेगा, होल में भी होल्ड करेगा और इंटीजर में भी होल्ड करेगा। लेकिन अगर मैं लिखूं 2 minus 3 3 minus 2, ये होल्ड नहीं करता है, इसीलिए यहां ऐसे लिखना पड़ता है 2 minus 3 is not equals to 3। This is the sign of is not equals to, so 2 minus 3 is not equals to 3 minus 2 because reason behind it 2 minus 3 आप करोगे तो आंसर आएगा -1 और 3 minus 2 करोगे तो आंसर आएगा 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 3 into 2 is equals to 2 into 3 लिख सकते हैं बिकॉज दोनों का आंसर इक्वल होता है 6। तो फिर से मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। लेकिन डिवीजन के केस में जब जाओगे बेटा 3 divided by 2 is not equals to 2 divided by 3 because 3 upon 2 है ये और ये 2 upon 3 है और 3 upon 2 और 2 upon 3 इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब इसके ऑर्डर को जब हमने चेंज कर दिया नंबर के ऑर्डर को तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अभी आपने समझ लिया रैशनल नंबर के केस में। अब मैं बात करूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है बेटा a plus b plus c bracket is here is equals to a plus b plus c, in this case bracket is here। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एडिशन के केस में होल्ड करता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 ब्रैकेट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 plus 3 5 plus 4
दैट इज 9। और यहां देखिए 2 + 3 + 4 और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 2 + 7 दैट इज 9। हमने क्या देखा, इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इसने होल्ड किया। सिमिलरली माइनस के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है और डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। फिनिश। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी समझ गए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी समझ गए, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी रैशनल के केस में समझ लिया। इससे आगे जब हम चलेंगे तो कुछ और भी चीजें आपको इसमें पढ़नी है बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमने पढ़ना है एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। और क्या पढ़ना है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होते हैं ये भी समझिए। एडिटिव आइडेंटिटी ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। अब जब दो नंबर को ऐड करोगे और उसका आंसर आ जाए 0 तो इसका मतलब ईच वन इज द एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं। ये एडिटिव आइडेंटिटी है और जब दो नंबर को ऐड करेंगे और उसका आंसर आ जाए 0 मींस ईच वन इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। लाइक हमारे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है -5 और दोनों को आप ऐड करते हो तो आंसर आएगा 0। इट मींस 5 इज द additive inverse of -5 and -5 is the additive inverse of 5. And that is the reason when both are added, we get 0. Similarly, -1/2 plus 1/2. When we add both of them, we get 0. It means -1/2 is the additive inverse of 1/2 and 1/2 is the additive inverse of -1/2. Very easy. In case of multiplicative identity, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, that is 1। आपका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, राइट एडिटिव आइडेंटिटी आपने लिखना है 0, राइट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने लिखना है 1। अच्छा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम रेसिप्रोकल, सॉरी ये अभी बाद में बताएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। अब मान लो एक नंबर है हमारे पास 1/2, by what number you will multiply 1/2 to get it 1, that is 2/1। इसका रेसिप्रोकेट करते तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बिकॉज 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि दिस वन when two numbers are multiplied या two rational numbers are multiplied and product coming 1, then each one is the multiplicative inverse of other, or you may say each one is the reciprocal of other. Means 1/2 is the reciprocal of 2/1 and 2/1 is the reciprocal of 1/2. Similarly, we may say 1/2 is the multiplicative inverse of 2/1 and 2/1 is the multiplicative inverse of 1/2. अच्छा, अब ये यहाँ तो दोनों नंबर पॉजिटिव था, मान लो हमारे पास है -3/5, तो इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? Certainly -5/3. So it becomes 1. It means -3/5 is the multiplicative inverse of -5/3 and -5/3 is the multiplicative inverse of -3/5. So अब याद रखिएगा बेटा कि एडिटिव इनवर्स में
उसकी साइन चेंज हो जाती है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, उसकी साइन नहीं बदलती, सिर्फ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाते हैं। जो न्यूमरेटर था बाद में डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर था बाद में न्यूमरेटर हो जाता है। और माइनस की साइन, अब कहोगे जो न्यूमरेटर तो -3 था, यहाँ ये 3 ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जब रेशनल नंबर जब आप लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, उसमें माइनस की साइन ऑलवेज न्यूमरेटर के साथ लगी होती है, इसीलिए हमने इसको ऊपर लगाया। अगर आप नीचे भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, बट दैट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हो सकता है कोई टीचर आपको उसको रॉन्ग बता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग इज इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो टाइप के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मैं दोनों आपको वन बाय वन बता रहा हूं। एक है हमारे पास, मान लीजिए मैंने लिखा a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी, सो a और b मल्टीप्लाई हो जाता है एंड a इंटू सी, a into b plus a into c. This is distributive property of multiplication over addition. और अगर यह a into b minus c है बेटा, तो a into b minus a into c. This is known as distributive property of multiplication over subtraction. अब मान लो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, 2 into 3 plus 5, और आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो हम लोग, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सॉल्व दिस, तो आप क्या करोगे? हम लोग पहले बोर्ड मास रूल पढ़ चुके हैं, हम लोग डायरेक्टली बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, करते हैं नॉर्मली। क्या करते हैं? ब्रैकेट को पहले बोर्ड मास में कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 और 5 को ऐड कर देते तो होता है 8 और ये फाइनल आंसर हो जाता है 16। बट इन दिस स्टैंडर्ड, in standard 8, if your question is saying solve using suitable property, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का वही है 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, सॉल्व यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे बेटा? प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास पे नहीं जाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे? यहां कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, किसी किसी स्कूल में मैं देखता हूं कि टीचर बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी तूने अप्लाई करी है उसको ब्रैकेट में लिखो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी कौन कौन सा अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी, इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इतने ही प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे नॉर्मली, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा ही नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ आपको समझने के लिए है कि टू रैशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो रैशनल ही होता है, मींस ऑपरेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज समटाइम रैशनल एंड समटाइम्स ऑलवेज रैशनल ही होता है। जैसे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल। अच्छा, किसी किसी बुक में ये दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट रैशनल, तो रॉन्ग है बेटा, याद रखिएगा। तो आपने ये समझ लेना है कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स भी रैशनल ही होते हैं। तो आपने इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को यहां अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे वो देखिए, 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो हम पहले 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 2 अकेला था, अभी 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के साथ, 3 के साथ भी ले जाएंगे और 5 के साथ भी ले जाएंगे। यहां प्लस 5 प्लस की साइन है तो प्लस 2 इंटू, वी हैव अप्लाइड हियर distributive property of multiplication over addition,
अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम लोग यहाँ प्लस की जगह माइनस डालते। नाउ 2 into 3 is 6 plus 5 into 2 is 10 and final answer is 16। उस समय भी 16 ही आया था आंसर और अभी भी 16 ही है, मगर याद रहे आपने उस मेथड से, बच्चे कई बार मैं देखता हूं जब बच्चों को मैं एग्जाम की बुक चेक करके देता हूं, नोटबुक या आंसर शीट बोलिए, तो बच्चे आते हैं सर इसमें तो आपने मार्क्स ही नहीं दिया, जबकि उसका आंसर भी वही है और मेरा भी आंसर वही है, आंसर राइट है तो भी आपने मार्क्स नहीं दिए। नो, you will not get any marks in that very condition if according to instruction of the question you have not done the sum। हमने according to instruction of the question sum को करना है। क्वेश्चन ने यह नहीं कहा सिंपली कि सॉल्व इट, और आएगा भी नहीं, 8th स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये तो 3rd 4th 5th का क्वेश्चन 2 into 3 plus 5 जहां बोर्ड मास दिखाया जाता है वहां ये क्वेश्चन था। तो आपने यहां क्या करना है, आपका क्वेश्चन कह रहा था यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी सॉल्व सुटेबल प्रॉपर्टी, तो आपने अप्लाई नहीं किया, तो मेन थिंग है वहां सुटेबल प्रॉपर्टी, मेन थिंग इज नॉट द आंसर। तो हमने इस 16 आंसर आने के बावजूद, जो पहली बार हमने बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके 16 आंसर लाया, आंसर करेक्ट होने के बावजूद यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, और मैं भी नहीं देता हूं किसी बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, तो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करना। ठीक है बेटा, तो इतना हमने कर लिया। अभी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, और आई होप कि जितना एक्सप्लेन किया उसके बाद एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगा। 1 by 1 सारे क्वेश्चन हम करेंगे और आप देखिए। यस, तो हमने जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और एक्सरसाइज 1.1 का यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमने क्वेश्चन 1 भी लिखा और क्वेश्चन, देयर आर 2 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बोल सकते हो, दोनों को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहाँ प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये -2/3 into 3/5 है, और यहाँ -3/5 into 1/6। पहले तो ये जान लीजिए बेटा कि देयर आर 3 टर्म्स, दिस इज 1 2 and 3, 3 टर्म्स आर हियर। 3 टर्म्स है इस क्वेश्चन में। 3 टर्म्स में मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 टर्म्स होते हैं, ए बी सी। तो 2 टर्म को हमने ब्रैकेट में डालना है, तो इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। अब कौन कौन से टर्म ब्रैकेट में जाएंगे, इसके लिए हमने क्या करना है, चेक करना है। यहां देखिए, यहां भी 3/5 है और यहां भी 3/5, तो हम लोग इन दोनों को एक साथ करते हैं। -2/3 into 3/5 -3/5 into 1/6 प्लस 5/2। अब देखो हमने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब फिर से एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने बताया a into b plus c equals to a into b plus a into c। लेकिन अगर a into b plus a, मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां, अगर ऐसा लिखा हो a into b plus a into c, तो यहां भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए a into b plus c कर। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है तो आपने इस फॉर्म में ट्रांसफर करना है, और अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस फॉर्म में ट्रांसफर करना है। इफ योर क्वेश्चन इज सेइंग टू अप्लाई प्रॉपर्टी, तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। राइट नाउ क्वेश्चन इज रिटन इन दिस फॉर्म, तो हमने उस फॉर्म में ले जाना। उसके लिए देखो दोनों में 3/5 है, तो 3/5 को हम लोग बाहर ले लें। अब यहां देखिए बेटा, इसमें बच जाएगा -2/3 और इसमें बच जाएगा 1/6, और ये माइनस की साइन, क्योंकि हमने 3/5 लिया है। अगर यहाँ -3/5 लेते तो यहाँ -2/3 की जगह डायरेक्टली 2/3 बच रहा, तो इट इज 1/6 -1/6, और प्लस 5/2 यहाँ एडिटिंग है। नाउ दिस इज 3/5 इनटू, अब इसको सॉल्व करना है बेटा, एलसीएम होगा 6 प्लस 5/2 यही रहेगा। 6 is divided by 3, we get 2, multiplied by -2, we get -4. -6 divided by 6, we get 1, multiplied by 1, we get 1.
हमेशा याद रखिएगा इसको। हमने क्या किया, क्योंकि अभी भी बच्चे दोनों अनलाइक टर्म्स को प्रॉपर वे में लाइक में कन्वर्ट करते हैं, मींस 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो मेथड की जरूरत नहीं है, अर्लियर मेथड था। अभी आप बड़े क्लास में आ गए हो तो बड़े क्लास के अकॉर्डिंग आपने करना होगा। यहाँ मेन मोटो ये नहीं है कि आप एडिशन कैसे कर रहे हो, उसको लाइक में कन्वर्ट करो, उसको ऐसे करो, उसको, वो मेन मोटो नहीं है। मेन मोटो है कि हम सम कर रहे हैं, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तो हमने करना है। अब बेटा 3/5 इंटू -4 - 1 इज -5 अपॉन 6। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये -1 होगा, यहां -1 लिख देते हैं, और 3 2 जा, और ये +5/2 एज इट इज है हमारे पास अभी भी। नाउ इट इज -1/2 +5/2, एंड यहां फिर से एलसीएम 2 हो जाएगा। एलसीएम यहां लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 और 2 तो ऑलरेडी हम जानते हैं, दोनों लाइक में ही है। तो ये होगा -1 और ये होगा +5, एंड फाइनली इट इज, यहां मैं लिख देता हूं 4/2, 2 2 जा 4, सो फाइनल आंसर इज 2। ओके, नाउ वी आर कमिंग हियर। दिस इज, अब यहां भी हम चेक करेंगे कि 2/5 कोई मैचिंग नंबर है कि नहीं। यहां भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स। अच्छा, टर्म्स कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितने टर्म्स हैं? इसके लिए आपको प्लस और माइनस को देखना होगा। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस ओनली। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म्स को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां ये दोनों टर्म एक हुए, ये दोनों मिलके 1 टर्म, ये दोनों मिलके 1 टर्म, और ये दोनों मिलके 1 टर्म। हम लोग क्या करेंगे बेटा, 2/5 है यहाँ और 2/5 है यहाँ, तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 एंड -1/6 इंटू 3/2। इन दोनों को हम दोनों टर्म को एक साथ करें। यहां आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, वो अलग है। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2/5 को कॉमन लेंगे, देन इट इज -3/7 एंड इट इज 1/4 माइनस दिस बिकम्स 1/4। नाउ 2/5, और यहां हमने फिर से वही मेथड, ये तो -1/4 है, एलसीएम लेना है। 7 और 4 का एलसीएम होगा 28। 28 डिवाइडेड बाय 7 वी गेट 4, multiplied by -3 we get -12, plus 28 divided by 4 we get 7, multiplied by 1 we get 7. Now 2/5 into -12 plus 5 is -5 upon 28, and this is -1. कैंसिलेशन होगा बेटा, 5 कैंसिल होगा, ऊपर -1 and 2 14 जा। Now it is -1/14 plus -1/4। फिर से एलसीएम लेंगे 14 और 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 28। 28 डिवाइडेड बाय 14, अच्छा मैंने ऐसे ही लिख दिया डायरेक्टली 28। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने प्रॉपर वे में एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं और वीडियो में बोलता हूं, तुक्का लगाना मैथ्स में ऑलवेज रॉन्ग होता है, तो तुक्का आपने नहीं लगाना। तो 28 divided by 14 we get 2, multiplied by -1 we get -2, and minus 28 divided by 4 we get 7, multiplied by 1 we get 7, और ये बन जाएगा बेटा -9/28। दिस इज आंसर। फिनिश। Next question is question number 2. Write the additive inverse of each of the following. हमने एडिटिव इनवर्स भी एक्सप्लेनेशन में बताया है बेटा, तो उसको आप मुझे लग रहा है कि आपको खुद भी आंसर याद हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं पॉजिटिव है,
तो हमने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू -2/8। फिनिश। और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं क्लियर भी कर दूं, ये 2/8 है तो -2/8 कर देना। लेकिन सिंपली आपको मैं बता दूं बेटा कि 2/8 और -2/8 को जब आप ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू होगी 0। देखिए एलसीएम 8, ये 2 - 2 and that is 0/8 and that is 0 and that is the reason we say additive inverse of 2/8 is -2/8। मतलब दो रेशनल नंबर को जब हमने ऐड किया तो जो आंसर आया वो 0 आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हुआ। हियर ये पहले से नेगेटिव है तो हम लोग यहां लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ। एक बात और बता देता हूं बेटा, कई बच्चों को मैं देखता हूं ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां लिख देंगे इक्वल टू 5/9 जो कि उसका एडिटिव इनवर्स है। आंसर उनको मालूम है, ये पता चल जाता है, बट ये स्टेटमेंट ही अपने आप में रॉन्ग है कि मैं लिख दूं 2/8 इक्वल टू -2/8। ये टोटली रॉन्ग है, कोई भी टीचर इसको कट कर देंगे आपको। तो इसलिए आपने स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखना है, दिस इज रॉन्ग। तो प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है तभी आप उसका आंसर दीजिएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू 5/9। हमने यहां क्या किया, नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ये है -6/-5। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो यह नेगेटिव रेशनल नहीं हुआ, ये पॉजिटिव रेशनल हुआ। मतलब ये एक्चुअल में 6/5। ठीक है ना? तो अब ये -6/5 बन जाएगा। यहां पे हमने लिखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 इज इक्वल टू -6/-5 इज इक्वल टू -6/5। हमने यहां दोनों को कट कर दोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि ऐसा है तो हमने इसको ऐसा ही रखा। ये है 2/-9, इसका मतलब हुआ ये है -2/9। मैंने कहा ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है तो ये माइनस की साइन ऊपर चली जाती है। यहां एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज इक्वल टू 2/9। ये नेगेटिव है पहले से, इसको पॉजिटिव करना। लास्ट वन, यहां ये है -19/6। हियर वी शुड राइट एडिटिव इनवर्स of 19/-6 is equals to 19/6. Finish. Question number 3. Verify that minus x equals to x और x की वैल्यू यहां ये लेने की है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, LHS और RHS दो है तो हम लोग लिख देते हैं पहले LHS is equals to minus x and that is equals to minus 11/15 और इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होता है प्लस, तो प्लस 11/15 and that is equals to x जो कि x and that is x की वैल्यू दी हुई है 11/15। हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल कर देना। यहां आते हैं, यहां भी हम लोग ले लेते हैं LHS इक्वल्स टू माइनस x। अब यहां माइनस, ये माइनस और एक और माइनस इसमें भी लगा बेटा, ये है -13/17। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, तो प्लस -13/17 और ये एक स्टेप और जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो होगा -13/17।
एंड इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू यही है, इक्वल्स टू RHS, यू मे राइट हियर, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हो, या x इक्वल्स टू -13 अपॉन -30, उसमें जैसा लिखा है वैसा ही मैं लिखना चाहता हूँ, -13 अपॉन 70। हो गया। क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है सारे का। मैंने बताया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, ठीक है बेटा। तो यहां हम लिखेंगे, लेकिन फिर से मैं बोल देता हूं, पिछले क्वेश्चन में बताया था उस हिसाब से स्टेटमेंट आपने लिखना है, विदाउट स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 is equals to -13 is equals to minus, मैं लिख देता हूं पहले 1 upon -13 and that is equals to -1 upon 13. So this is the multiplicative inverse of this and this is the multiplicative inverse of this. इसमें हमने साइन चेंज नहीं करना है, बट मीन्स प्लस को माइनस या माइनस को प्लस, वो एडिटिव इनवर्स में होता है। मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को नीचे करना है। अच्छा, कई बच्चे ये बोलेंगे कि नीचे आपने 1 ऊपर कैसे लिख दिया, जब बोलते हो आपकी नीचे वाले नंबर को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो नीचे तो 1 है ही नहीं। हमने एक्सप्लेनेशन में बताया है बेटा कि इसके नीचे 1 होता है, आप लिख सकते हो, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -13 upon 19 is equals to -19 upon 30. हो गया। Here 1/5 आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 1/5 equals to 5/1 and that is simply 5 आप लिख सकते हैं। यहां हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो -5 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 3 इज 15 एंड 8 7 जा 56, तो 15 अपॉन 16 56 हुआ। अब हम लोग लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ गया, तो इसी का हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 56 अपॉन 50। दिस इज आंसर। यहां -1 इंटू -2 अपॉन 3 को सॉल्व कर देते हैं, इट बिकम्स 2 अपॉन 3। नाउ यू विल राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 into -2 upon 3 is equals to 3 upon 2। अब यहां ये लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -1 is equals to 1 upon -1 and that becomes -1। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
3 मल्टीप्लीकेशन के सम्स हैं। इसमें आपने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी यहां यूज हुआ। ठीक है बेटा, इसमें देखिए हमारे पास -4/5 इंटू 1 और 1 इंटू -4/5 हो गया, और बाद में 1 रिमूव हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो आंसर सेम नंबर ही आता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन मल्टीप्लीकेटिव, हमने क्या बताया था, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये भी लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, यहां दिस इंटू दिस इक्वल टू, यहां सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया। तो हमने ये बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि ऑर्डर चेंज होने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन का केस है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट वन इज, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आया है 1। इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये बन गया बेटा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फिनिश। Question is question number 6. Multiply 6/13 by the reciprocal of -7/16। मतलब 6/13 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो कैसे होगा बेटा, 6/13 इंटू -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर होगा, वो मैं बता चुका हूं। 16 6 जा 96 अपॉन 13 7 जा -91 एंड फाइनल आंसर इज -96/91। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 7 इज टेल what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3, 6 and 4/3 are in bracket, as 1/3 into 6 which are in bracket into 4/3। कौन सी प्रॉपर्टी हमें इन दोनों को इक्वल कहती है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है, वो है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जिसमें बाद वाले को अगर फर्स्ट टाइम हम बाद वाले दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं तो यहां फर्स्ट दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके। Next, question number 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 integer 1/8? Why or why not? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, -1 इंटीजर 1/8, तो ये बनेगा -9/8, ये हो जाएगा -9/8। तो एट ए ग्लांस ऐसा लगेगा कि 8/9 है वो -9/8 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा आपको एट ए ग्लांस बहुत सारे बच्चों को फील होता है, बट नो, दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। रीजन व्हाई और व्हाई नो, तो सिंपल रीजन आपने लिखना है बेटा कि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव ही होता है और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव ही होता है। सो आंसर लिखेंगे नो, 8/9
is note the multiplicative inverse of -1 integer 1/8. अब reason behind it, because multiplicative inverse of negative is not positive. बस हमने सिर्फ ये लिख देना है कि नेगेटिव नंबर का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजिटिव नहीं हो सकता. ओके. क्वेश्चन नंबर 9, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integer 1/3. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं. 0.3 इक्वल्स टू होगा 3/10. और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, वो अभी मैं बताता हूं. पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 3 इंटीजर 1/3 कैन बी रिटन. ये डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में लाया और यह मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 3 3 जा 9 + 1 10/3. सर्टेनली 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3 होता है. यस, बिकॉज आंसर लिखना है इस तरह से, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव inverse of 3/10 is equals to 10/3. Therefore 3 integer 1/3 is the, ये नहीं, इसको पहले लिखना है बेटा. तो ये 10/3 लिखिए यहाँ. 10/3 is equals to 3/10. और यहां लिखेंगे therefore 0.3 is the multiplicative inverse of 3 integer 1/. Finish. Question number 10 is write the rational number that does not have a reciprocal. वो रैशनल नंबर हमने बताना है जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है. वो रैशनल नंबर है 0. अब 0 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं होता है, मैं आपको आंसर सिंपली इतना ही देना है कि 0 is the rational number having no reciprocal. बट आपको मैं एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूं कि क्यों इसका रेसिप्रोकल नहीं होता. 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है बेटा. तो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0. और आपको मैंने बताया था एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वह रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता ही नहीं है. मतलब हमारा जो डेफिनेशन है नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड नंबर है. ठीक है ना बेटा. And therefore we may say 0 is a rational number having no reciprocal. Next question is the rational numbers that are equal to their reciprocal. वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल ही होता है. वो है बेटा 1, जिसका रेसिप्रोकल होता है 1/1. तो इसलिए 1 लेना है एक. और दूसरा नंबर है -1, 1, -1 जिसका रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है. कैसे हो देखिए. और -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1 एंड दैट इज -1.
तो 1 and -1 are the two numbers या two rational numbers having same reciprocal. 1 का reciprocal 1 and -1 का reciprocal -1. Third is the rational number that is equal to its negative. Rational number which is equal to its negative और वो है 0. मतलब आप +0 लिखोगे तो भी वही वैल्यू और -0 लिखोगे तो भी वैल्यू वही होगा. तो आंसर ये नहीं लिखना है, यही लिखना है. 0 is the rational number which is equal to its negative. हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 है ये बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है. फर्स्ट इज 0 हैज डैश रेसिप्रोकल. हमने लिखना है नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल. तो 1 अभी मैंने बताया था 1 एंड -1 ये दो नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल होता है. The reciprocals of -5 is -1/5. ठीक है बेटा. Reciprocal of 1/x where x is not equals to 0 is x. The product of two rationals, यहाँ rationals होना चाहिए. Rational is always a rational. मतलब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल. तो यहाँ लिखना है rational. Next one is which is last. The reciprocal of a positive rational number is पॉजिटिव होता है. अभी मैं बताया कि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव. तो यहां लिखना है इज पॉजिटिव. फिनिश. बच्चों ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया है और मैं हर वीडियो में बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप सर्टेनली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. अगर नए आप आए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए सो दैट कि नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके. बाय.